بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتاتے جائیں کہ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے انٹرمیڈیٹ حصہ اول کے سالانہ امتحانات برائے 2023 کے کامرس ریگولر گروپ کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ بالکل، کامرس ریگولر گروپ کے امتحانات میں 35,000 آپ کو بتائیں کہ 1432 امیدوار نے رجسٹریشن حاصل کی، 34,198 امیدوار امتحانات میں شریک ہوئے۔ مزید اس پر بات کریں گے، آئمہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئمہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے انٹرمیڈیٹ حصہ اول کے سالانہ امتحان برائے 2023 کے کامرس ریگولر گروپ کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ کافی تاخیر کے بعد جو ہے وہ ان نتائج کا اعلان کیا گیا ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی سفارش پر گریس مارکس دینے سے کامیاب طلبہ کی شرح جو ہے وہ 34 سے بڑھ کر 41% ہو گئی ہے۔ انٹرمیڈیٹ حصہ اول کے سالانہ امتحان برائے 2023 کے کامرس ریگولر گروپ کے نتائج میں کامیابی کی شرح جو ہے وہ انتہائی کم تھی، جس کے بعد فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی سفارش پر سائنس فیکلٹی کی طرز پر کامرس ریگولر گروپ میں بھی 4 متعلقہ مضامین میں طلبہ کو گریس مارکس دیے گئے ہیں۔ بورڈ کے اس اقدام سے کامرس ریگولر کے نتائج جو ہیں وہ 34% سے بڑھ کر 41% ہو گئے ہیں۔ بورڈ اعلامیہ کے مطابق کامرس ریگولر کے امتحانات میں 35,432 امیدوار نے رجسٹریشن حاصل کی تھی، جبکہ 34,198 امیدوار جو ہے وہ امتحانات میں شریک ہوئے، جن میں سے 7 پرچوں میں کامیاب ہونے والے طلبہ کا تناسب جو ہے وہ 14,639 امیدواروں نے تمام 7 پرچوں میں کامیابی حاصل کری ہے، جبکہ 6,770 نے 6 پرچوں میں، 4,249 نے 5 پرچوں میں، 2,844 نے 4 پرچوں میں، 2,024 نے 3 پرچوں میں، جبکہ 1,672 نے 2 پرچوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ بورڈ کے نتائج جو ہیں وہ بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی کر دیے گئے ہیں۔ بورڈ اعلامیہ کے مطابق چیئرمین انٹر بورڈ کی ہدایت پر بنائی گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں انٹرمیڈیٹ حصہ اول کے کامرس ریگولر گروپ کے چاروں پرچوں پرنسپل آف اکاؤنٹنگ، پرنسپل آف کامرس، پرنسپل آف اکنامکس اور بزنس میتھمیٹکس میں طالب علموں کو 15% گریس مارکس دیے گئے ہیں۔ جی اچھا آئمہ، گریس مارکس دیے گئے ہیں اور کچھ طالب علم ایسے بھی ہوں گے جو ابھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوں گے، جنہوں نے پوری تیاری کی ہوگی، وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے پرچوں میں پاس تھے؟ جی بالکل، دیکھیں اس طرح سے جیسے ہم نے دیکھا کہ انٹرمیڈیٹ حصہ اول میں پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل کے جو تناسب تھا کامیابی کا وہ کافی کم تھا، جس کے بعد طلبہ کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا جا رہا تھا۔ وہ طلبہ جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ بورڈ آفس کے باہر بھی احتجاجی مظاہرے کی، جبکہ دیگر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہا، جس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی تھی، جس میں طلبہ کو جو ہے وہ 15% گریس مارکس دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ کامرس ریگولر کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریس مارکس دیکھ کر ہی جو ہے وہ 41% ہو گئے ہیں، تو طلبہ کی جانب سے اگر کوئی اس طرح کا کلیم کیا جائے گا تو ان کے لیے جو ہے وہ اسکروٹنی کا عمل ہوتا ہے، اسکروٹنی کے عمل کے ذریعے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ نتائج کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آئمہ خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چیئرمین انٹر بورڈ نسیم ایمن نے بڑا اعتراف کر لیا۔ سٹی 21 سے گفتگو میں آپ کو بتائیں کہ اپنی کمزوری تسلیم کر لی ہے۔ کہا کراچی کے بچوں کا تعلیمی معیار پنجاب سے کم ہے، پنجاب جیسا گریڈنگ سسٹم کراچی میں فوری نافذ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو سناتے ہیں۔ جی یہ اس پہ ہماری ابھی کاؤنسل جو ایس بی سی سی چیئرمین کمیٹی ہوتی ہے اس میں یہ ابھی جائے گا، لیکن اس کا ہم نے جو او ایم آر کا سلسلہ جو ہمیں انسٹرکشنز ملے ہیں کہ ہم 2025 سے اسٹارٹ کریں گے، تو نئی گریڈنگ پالیسی بھی ہم 2025 سے شروع کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا تعلیمی معیار بنسبت پنجاب اور کے پی کے کم ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک دم جو ہے وہ ان والا جو گریڈنگ سسٹم ہے اس کو فی الحال ڈیلے کروائے اس سال، اور اگلے سال سے باقاعدہ ہماری کتابیں بھی ٹائم پہ آ جائیں۔ ٹیکسٹ بک سے کتابیں بھی ٹائم پہ نہیں پہنچ رہی اور سلیبس کور بھی نہیں ہو رہا پراپر، تو جب سلیبس بھی کور ہو جائے تو پھر ہم اس میں امینڈ کر سکیں گے کہ یہ جو ہے وہ گریڈنگ سسٹم لایا جائے۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے قلمدان سنبھالتے ہی اہم احکامات جاری کر دیے۔ مانیٹرنگ افسران کو ہر ماہ اپنے اسکولوں کی کارکردگی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر تعلیم سندھ نے کہا ہے کہ جن اسکولوں میں اساتذہ تعینات ہیں لیکن بچے نہیں، ان کی تعداد کا پتہ لگایا جائے۔ جو اسکول بند ہو چکے لیکن اساتذہ تعینات ہیں اور خستہ حال عمارتوں والے اسکولوں کی معلومات بھی فراہم کی جائیں۔ بنیادی سہولیات سے محروم اسکولوں کے حوالے سے بھی رپورٹ تیار کی جائے گی۔ مانیٹرنگ افسران کو روزانہ
अपने अजला के स्कूलों का दौरा करने का हुक्म भी दे दिया। हर माह के 25 तारीख को डायरेक्टर ऑफिस में रिपोर्ट जमा करानी होगी। सरदार शाह ने चीफ मॉनिटरिंग अफसरान को मुतलका अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स के साथ हर माह मीटिंग की भी हिदायत कर दी है। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर सिंध में 7 मज़ाहिब की तालीम देने का फ़ैसला किया गया है। महकमा तालीम ने अक़लियती तलबा के लिए निसाब तैयार कर लिया है। नए निसाब में हिंदू मत, बुद्ध मत, सिख मत और ईसाईयत शामिल की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आइमा खान की इस रिपोर्ट में। सिंध के स्कूल्स में 7 मज़ाहिब की किताबें पढ़ाने के लिए प्लान तैयार। अक़लियती तलबा को ईसाईयत और दीगर मज़ाहिब की किताबें पढ़ाई जाएंगी। अक़लियती तलबा की तालीम की फरहमी के लिए 5वीं जमात तक की किताबें छप चुकी हैं। मुल्क में अक़लियतों से ताल्लुक़ के 7 मज़ाहिब शामिल हैं। मज़ाहिब में बहाई, बुद्ध मत, ईसाईयत, हिंदू मत, कैलाश, सिख मत और ज़रतिशी मज़ाहिब शामिल हैं। चीफ एडवाइज़र कैरिकुलम महकमा स्कूल एजुकेशन डॉक्टर फौजिया का कहना है कि हमारे पास तकरीबन 60,000 से ज़ायद दूसरे मज़ाहिब के तालिब इल्म ज़ेर तालीम हैं। अक़लियतों के लिए मौजूदा निसाब में शोबों का इजाफा किया गया है। इखलाकियात के मज़मून को दीनी उलूम के नाम से अपग्रेड कर दिया है, जिसमें तमाम मज़ाहिब का मवाद है। हमारे पास ऑलरेडी जो रिलीजियस स्टडीज़ के नाम से एक पहले एथिक्स होता था, लेकिन अब रिलीजियस स्टडीज़ है जो कि जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो पढ़ते हैं, उनके टीचर्स भी हैं। आप जो भी इस वक्त बात करिए जो कि रिसेंटली किया गया है, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो किताबें डेवलप की गई, वो किताबें अभी पहली से 5वीं तक की हैं। ज़ाहिर वो किताबें अभी आ गई हैं, लेकिन वो उसके लिए हायरिंग क्या होगी, किस तरीके से होगा, वो अभी इट हैज़ येट टू बी डिसाइडेड। डॉक्टर फौजिया ने वाज़े किया कि अक़लियती निसाब पढ़ाने के लिए असातिज़ा की भर्ती का अमल भी जल्द किया जाएगा। आइमा खान, सिटी 21। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद गनी से डेप्यूटी मेयर कराची की मुलाकात हुई है, जिसमें कराची की सूरत हाल बिलखसूस शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू भी की गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार से। जी शोएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मुलाकात हुई है, जिसमें कराची की सूरत हाल बिलखसूस शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। इस मुलाकात में पानी और सीवरेज की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दाम समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना था कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए कोशा है। अवाम ने बल्दियाती और आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया है। हमारा फर्ज है कि हम अवाम के तमाम मसाइल का फौरी तौर पर हल निकालें, जिसके जवाब में डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि वो और मेयर कराची तमाम टाउन चेयरमैन जो है शहर की बेहतरी के लिए कोशा है, खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। दोनों रहनुमाओं ने शहर की बेहतरी के लिए मिलजुल कर काम करने के अज़्म का भी आदा किया है। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार, हमें अपडेट। वज़ीर तालीम और माइंस एंड मिनरल्स सिंध सैयद सरदार अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट में महकमा स्कूल एजुकेशन का दौरा। सूबाई वज़ीर सैयद सरदार शाह से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सिंध डॉक्टर शीरी नारेजो की मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात हुई है। किन किन बातों पर तबादला ख्याल किया गया है, कौन कौन से मंसूबों पर बातचीत की गई है, बात करने के लिए आइमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आइमा, मुलाकात बारे अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट में महकमा स्कूल एजुकेशन का दौरा किया गया है। सूबाई वज़ीर सैयद सरदार शाह की से सेक्रेटेरिएट स्कूल एजुकेशन सिंध डॉक्टर शीरी नारेजो ने मुलाकात की। वज़ीर तालीम सिंध ने महकमे में जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग ली, जबकि सैलाब मुतासरा स्कूलों की बहाली के हवाले से भी रिपोर्ट पेश की गई। जी बहुत शुक्रिया। कोरंगी एसएसपी ऑफिस में शहरियों के छीने गए मोबाइल फोन्स को बरामद करके वापस करने की तकरीब मुनक्किद हुई। एसएसपी कोरंगी के मुताबिक 300 से ज़ायद मोबाइल फोन्स को बरामद किया गया, जबकि 50 मोबाइल फोन शहरियों को वापस किए गए। मजीद बताएंगे नुमाइंदे सलमान सलीम।
जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता 6 माह के अंदर अगर हम लोग ज़िला कोरंगी की बात करें तो जितने भी मोबाइल फ़ोन स्नैच हुए उनको जो है वो रिकवर किया गया। कई ऐसी वारदातें हुईं जिसके अंदर शहरियों की जानिब से ये बोला गया था कि उनके मोबाइल फ़ोन, उनके पर्स और उनकी जो दीगर अशिया हैं वो छीन ली गईं। लेकिन पुलिस ने जो है वो 6 माह के अंदर कारकर्दगी करते हुए 300 से ज़ायद जो है वो मोबाइल फ़ोन रिकवर किए, जिसमें से 50 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो उनके मालिकान के हवाले कर दिए गए हैं। एसएसपी कोरंगी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि मोबाइल स्नैचिंग होती है, फिर किस तरह उसको रिकवर करते हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं शहरियों को तो उम्मीद नहीं होती कि उनको मोबाइल वापस मिलेगा, लेकिन आज आपने उनको मोबाइल वापस दिए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं देते हुए, और किस तरह इस चीज़ को रोका जा सकता है? थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने बताया कि कोई 300 के करीब मोबाइल बरामद हुए, जिसमें 50 के करीब मोबाइल हमने शहरियों को वापस किए, जिनकी मालियत तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। ये वो मोबाइल वापस किए गए जिनकी FIRs लॉन्च नहीं की गई, जिनकी सिर्फ एप्लीकेशन हमें रिसीव होती हैं कि हम FIR लॉन्च नहीं कराना चाहते। शहरी इसमें इज्तनाब करते हैं FIRs लॉन्च कराने से। तो इसमें हमने मुख्तलिफ गैंग्स को गिरफ़्तार किया। हमारी IT टीम ने उस पर वर्किंग की, और इस पे वर्किंग के दौरान गैंग्स की गिरफ़्तारी के बाद इन शहरियों से रब्ता किया गया और इनको यहाँ पे बुलाया गया और इनके हवाले किए गए, क्योंकि इनकी मालियत को देखा गया और शहरियों के लिए ये बहुत कीमती हैं। देखिए बिल्कुल, एसएसपी कोरंगी जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि गुज़िश्ता 6 माह में जिन जिन शहरियों के मोबाइल फ़ोन छीने हैं, कोशिश की गई कि उनके मोबाइल फ़ोन को जो है वो बरामद किया जाए। 300 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, 50 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन उनके मालिकान के हवाले भी कर दिए गए हैं। ताहम कोरंगी पुलिस की जानिब से शहरियों की जो मोबाइल फ़ोन वापस किए जा रहे हैं, यकीनी तौर के ऊपर ये एक अच्छा इक़दाम है। और अब आपको बताते जाएं कि सच्चल की हदूद में पुलिस पार्टी की 1 करोड़ से ज़ायद की डकैती की वारदात रिजवान डकैती मनसूबा बंदी का मरकजी मुलजिम है। इस पर मजीद बात करेंगे। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, देखिए सच्चल की हदूद में पुलिस पार्टी की 1 करोड़ से ज़ायद की डकैती की वारदात जो है, पुलिस ने मुलविस पुलिस पार्टी और प्राइवेट बंदे को जो गिरफ्तार किया है। तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार प्राइवेट शख्स रिजवान जो असल मुलजिम बताया जा रहा है, जिसने डकैती की मनसूबा बंदी से डकैती करने तक जो रिजवान का असल किरदार रहा है। पुलिस पार्टी से कैसे रिजवान ने राब्ता किया, इसकी तहकीकात जो है वो कर रहे हैं। मुलजिम रिजवान प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बताया जा रहा है। वाकई में मुलविस मजीद 4 अफराद की तलाश जो है वो अब पुलिस को जो है वो जारी है। जबकि वारदात के वक्त जो है वो SHO जो है वो मौके पर मौजूद नहीं थे। SHO राव रफीक से जो है वो फोन पर राब्ता जो है वो किया गया था। अभी फिलहाल जो है वो तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि कल अदालत में पेश कर जो है वो मुलजिमान का रिमांड भी हासिल किया जाएगा, लेकिन अभी जो है वो मजीद इस पर तहकीकात की जा रही है। रिजवान जो है वो सिक्योरिटी गार्ड है प्राइवेट, जिसने जो है वो बाकायदा तमाम पर मनसूबा बंदी की है और SHO से राब्ता किस तरीके से हुआ और SHO से फोन पर क्या बात हुई, ये चेक करना भी तफ्तीशी हुकाम का कहना है। हम चेक कर रहे हैं इसको। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुषा, अपडेट करें। आपको बताएं कि सिंध सरकार ने तकर्रुर तबादले और तरक्याती मंसूबे और नई भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने सूबे भर में अफसरान दिगर मुलाजमिन के तकर्रर तबादलों पर जो है पाबंदी खत्म कर दी है। इसके अलावा नए तरक्याती मनसूबों और नई भर्तियों पर भी पाबंदी खत्म कर दिया है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जबकि 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के बाद पाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज जो है सिंध हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन जारी करके तमाम तर जो पाबंदियाँ वो पाबंदियाँ खत्म कर दी है। जी ठीक है आज़ाद नोडियो, साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध सरकार ने मसीह बरादरी के योम ईस्टर की मुनासबत से मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी मुलाजमीन को रवां माह की तनख्वाह और पेंशन एडवांस 29 मार्च को अदा करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मसीह बरादरी के योम ईस्टर की मुनासबत से सिंध सरकार ने तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाह और पेंशन एडवांस रवां माह के अदा करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा खजाना सदर ने बाज़ाब्ता तौर पर खत जारी कर दिया। खत में लिखा गया है कि योम ईस्टर की मुनासबत से सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह है, जो मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली या उनकी पेंशन है, वो 29 मार्च को अदा कर दी जाएगी। जी ठीक है आज़ाद, साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध सरकार ने महकमा एंटी करप्शन के 16 ग्रेड के 9 इंस्पेक्टर्स को 17 ग्रेड में तरक्कियाँ
दे दी गई हैं, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा एंटी करप्शन के 16 ग्रेड के 9 जो है उनको 17 ग्रेड में असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदों पर दर्जा दे दिया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तरक्की पाने वालों में मोहम्मद असलम, काजी शराफुद्दीन, अब्दुल वहाब बुर्डो, सैयद हामिद रिजवी, रहमतुल्लाह राजपर, मुनीर अहमद, सनाउल्लाह ऐवान और सफदर अली जो शामिल है, जिनको सब 16 से 17 ग्रेड तरक्की देकर असिस्टेंट डायरेक्टर का ओहदा दे दिया गया है। जी आज़ाद नोरियो हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। इंस्पेक्टर को असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। आज़ाद, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध सरकार ने कराची के 3 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इसी बारे में हमारे साथ आज़ाद नोरियो मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा, किस किस का तकर्रुर तबादला किया गया है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कराची के 3 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी कराची सनाउल्लाह करवड़ का तबादला कालादम करार दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद आसिफ अली को उनको महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में अपॉइंट करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि जुल्फ़िकार अली को नया असिस्टेंट कमिश्नर जो है नाज़िमाबाद कराची तैनात किया गया है। इनका भी महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी आज़ाद नोरियो हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। अब गवर्नर हाउस में इफ्तार के साथ साथ सहरी का भी एहतमाम किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी कहते हैं, महंगाई के सताए अवाम के लिए कोशिश की है कि वो सहर व अफ्तार बाआसानी कर सकें। गवर्नर सिंध का हमारे नुमाइंदे राहील बेग से गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। कहेंगे हर रमज़ान की तरह इस बार भी खूबसूरत दस्तरखान सजाया गया है। माह रमज़ान की बरकतें और नेमतें यहाँ पर मौजूद हैं, अवामी अफ्तार हो रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पिछले साल भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर बरकत दी। मैं तो समझता हूँ अल्लाह ने मुझे अपना सुपरवाइज़र बना के ये मौका दिया, तो मैं खुश नसीब हूँ कि यहाँ लोग आ रहे हैं। गवर्नर हाउस के दरवाज़े खुले हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सभी के लिए खुले हैं, एहलियान कराची के लिए भी, एहलियान सिंध के लिए भी। जो आएगा वो मेरा मेहमान है, मैं उसकी मेज़बानी करूँगा, ख़ुद यहाँ मौजूद हूँ, उनके साथ इफ़्तार करूँगा। पिछले साल भी आपने देखा और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने सहरी का भी इजाफ़ा किया है। रोज़ाना गवर्नर हाउस में सहरी भी हो रही है, इफ़्तारी भी हो रही है और सब अल्लाह का रिज़्क़ है दिया हुआ, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस माशी हालात में जहाँ लोग इफ़्तार के लिए खजूर और पानी पे गुजारा कर रहे थे, हमने यहाँ उनके लिए इफ़्तार और डिनर दोनों का एहतमाम किया है। बिल्कुल जी, गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि महंगाई की सताई इस आवाम के लिए अफ्तार के और सहर का ख़ास एहतमाम किया जाता है और इसी वजह से गवर्नर हाउस के जो दरवाजे हैं आम आवाम के लिए खोल दिए गए हैं और यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद अफ्तार के लिए गवर्नर हाउस का रुख करती है। जी अब आपको बताते जाएं कि शहर कायद में बिजली की बंदिश की शिकायत बढ़ने लगी। रमज़ानुल मुबारक में भी आवाम को रिलीफ ना मिल सका। लांढी में सहर व अफ्तार के औकात में बिजली बंदिश मामूल बन गई। इलाके में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों से भी तजावुज़ कर गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद फरहान खान की रिपोर्ट में। माह रमज़ान में भी बिजली लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। सहरो अफ्तार के औकात में बिजली की लोड शेडिंग जारी। लांडी 2C में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटों से तजावुज कर गया। बिजली की आंख मचोली से परेशान इलाका मकीन कहते हैं, बिजली 1 घंटा आती है और 3 घंटा गायब रहती है। की जाती है, कम से कम 2.5 से 3 घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पर हो रही है। सहर अफ्तार 2.5 से 3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर इलाके में, जो है ना। सहरी के टाइम भी चली जाती है, कभी अफ्तार के टाइम भी, और अभी भी लाइट मौजूद नहीं है इलाके में। परेशानी हो रही है, सहरी के टाइम पे लाइट नहीं होती है, अफ्तार के टाइम पे भी नहीं होती है। गैस की परेशानी है, सबसे ज़्यादा पानी की इतनी परेशानी हो गई है। 1 हफ्ता हो गया पानी नहीं है इलाके में। मकीनों ने मुतालबा किया कि माह रमज़ान में बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन उस्मान के साथ फरहान खान, सिटी 21। सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी पर चेयरमैन कंज्यूमर का बड़ा ऐलान। मुलव्वस दुकानदारों को जेल भेजने का मुतालबा कर दिया। कौकब इकबाल ने कहा, 1 माह के लिए हमें एजाजी मजिस्ट्रेट का ओहदा दे दें, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो मुनाफाखोरी कर सके। काबिश मेमन की रिपोर्ट देखिए।
صارفین کی نمائندہ تنظیم نے کمشنر کراچی کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا۔ کنزیومر ایسوسی ایشن نے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد نہ ہونے کا ملبہ متعلقہ اداروں پر ڈال دیا۔ چیئرمین کوکب اقبال کا کہنا ہے پرائس لسٹ پر عمل درآمد چند دکانوں پر چھاپے مار کر نہیں ہو سکتا، منافع خوری کرنے والوں کو جیل بھیجا جائے۔ پرائس لسٹ پہ عمل درآمد یہ کون کرائے گا؟ یہ اخبارات میں ٹی وی پہ مختلف میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ رہا ہے کہ جناب یہ چند دکانوں پہ چھاپے لگ رہے ہیں، چند دکانداروں کو پکڑا جا رہا ہے۔ آخر یہ جو معاشرہ ہے یہ سدھرتا کیوں نہیں ہے؟ ہمارا جو منافع خور تاجر ہے یہ رمضان شریف میں جو ہے خود جو ہے والنٹری طور پہ جو ہے وہ کیوں نہیں قیمتیں کم کرتا؟ آپ نے اگر چلے 50 لاکھ روپے کا ایک دن میں کمشنر کراچی صاحب نے چالان کرا دیے، ان کو جو ہے چالان کرنا نہیں ہے، ان کو تو جیلیں بھیجیں۔ کوکب اقبال بولے مجھے 1 ماہ کے لیے اعزازی مجسٹریٹ مقرر کریں، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ منافع خوری کرے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو جو ہے وہ آپ اس کے لیے اعزازی مجسٹریٹ مقرر کر دیں یا ہمیں پاور 1 مہینے کے لیے دے دیں صرف رمضان شریف میں۔ اگر ہماری کارکردگی صحیح ہو اور ہمارے پاس جو لوگ کام کریں والنٹری طور پہ، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کراچی میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے منافع خوری کر کے دکھا دے۔ چیئرمین کوکب اقبال نے شکوہ کیا کہ کمشنر کراچی کنزیومر ایسوسی ایشن کو اجلاس میں نہیں بلاتے اور سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی کی شکایت کرنے کے باوجود ازالہ نہیں ہوتا۔ کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ رمضان المبارک میں بھی شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی معطل ہے۔ رمضان المبارک میں بھی مکین پینے کے پانی کو ترس گئے۔ لانڈھی 3.5 نمبر میں پانی کی عدم فراہمی کے باعث مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں آئمہ خان کی رپورٹ۔ شہر قائد میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ رمضان المبارک میں بھی لانڈھی 3.5 نمبر کے مکینوں کو پانی نہ مل سکا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں 1 سال ہو گیا پینے کا پانی نہیں، مہنگائی کے اس دور میں پانی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ علاقہ مکینوں نے بتایا کہ لائنوں میں سیوریج ملا پانی آتا ہے۔ یہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، پانی نہیں آ رہا۔ لانڈی 3.5 نمبر علاقہ 2C ہے، یہاں پانی نہیں ہے بالکل بھی۔ کافی ٹائم سے بہت پریشانی ہے ہم لوگوں کو پانی کی۔ یہاں ہر سال کی یہی کہانی ہے، رمضان سے ہفتے پہلے سے بالکل ہی پانی بند ہے، یہاں پہ پانی نہیں آ رہا ہے۔ یہ بقرعید پہ صاحب ہوتا ہے، جب قربانی کا جانور لاتے ہیں تو چاند دکھنے کے بعد پانی بالکل غائب ہو جاتا ہے یہاں بقرعید پہ بھی۔ یہی معاملہ چل رہا ہے یہاں پہ۔ لوگوں نے حکمرانوں سے مطالبہ کیا کہ کم سے کم رمضان میں تو پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ کیمرامین عثمان کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ کشمیر کالونی گلی نمبر 6 میں گیس میٹر سے پانی آنے لگا۔ علاقہ مکین گیس مسائل کے باعث سلنڈر کے استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ چولہوں میں گیس نہیں اور گیس میٹر سے پانی نکلنے لگا۔ یہ مناظر کشمیر کالونی گلی نمبر 6 کے ہیں، جہاں عرصہ دراز سے گیس پائپ لائنیں اور میٹر تو نصب ہیں، لیکن ان میں گیس کے بجائے سیوریج کا پانی آتا ہے۔ اس صورتحال نے علاقہ مکینوں کو ذہنی اذیت سے دوچار کر رکھا ہے، جو کھانا تیار کرنے کے لیے گیس سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ بتانا چاہوں گا کہ 2 سال ہو گئے، تقریباً 2 سال سے یہاں پانی نہیں آ رہا، تو کافی لوگ مطلب کہ گیس نہیں آ رہا تو کافی لوگ پریشان ہیں۔ تو ہم لوگ سلنڈر بھرواتے ہیں، 300 روپے کلو میں ہمیں جو نا گیس مل رہی ہے، تو 1 ہفتہ بھی گیس یوز نہیں ہوتی 1 کلو، تو کافی مشکلات ہو رہی ہے۔ سیوریج کا پانی ہے، یہ 3-4 دفعہ ہم لوگ نکالتے ہیں تو پھر کوئی کم تھوڑی بہت آتی ہے، نہیں تو بالکل ہی نہیں آتی ہے۔ یہاں تو ہے ہی نہیں ہے بالکل ہی نا، 4-5 سال سے بالکل ہی نہیں ہے، نہ کوئی آ کے چیک کرتا ہے، نہ کوئی ایسی پریشانی ہو رہی ہے، ہر گھر میں یہی مسئلے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا SSGC حکام اور حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان کے مسائل حل کر کے گیس فراہم کی جائے۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سندھ سرکار نے مختلف محکموں کے 17 اور 18 گریڈ کے 75 افسران کو 18 اور 19 گریڈ میں ترقیاں دے دی ہیں، جس کے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن نے الگ الگ سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ سندھ سرکار نے مختلف محکموں کے 17 اور 18 گریڈ کے 75 افسران کو 18 اور 19 گریڈ میں ترقیاں دے دی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے آزاد نوڑیو سے۔ جی آزاد، بتائیے گا۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے بڑے پیمانے پر مختلف محکموں کے افسران کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دینے کی منظوری دی۔ اس کے بعد آج باضابطہ طور پر محکمہ سروس جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایکس پی سی ایس گروپ کے افسران میں
समीरा हुसैन, मंजूर अहमद कंदानी, अब्दुल आला भट्टी, सैयद मोहम्मद अली हक नवाज, रियाज हुसैन वसान, वलीगुंद बलोच, कमाल हकीम दायो, डॉक्टर मोहम्मद बख्श राजा धारेजो और नवीद रहमान लड़क जो है अगले 19 ग्रेड में तरक्की दी, जबकि इमदाद अली अबड़ो, मसूद भुट्टो, मोहम्मद आसम, शाहनवाज संगरो, राज नफरानी कादरी, नसरुल अब्बासी, सलीमला उर्दू, सैयद गुलाम मेहदी शाह, शेख मोहम्मद रफीक को भी 19 ग्रेड में तरक्की दी गई, जबकि नजीर अहमद सुंगरो और मोहम्मद हुसैन घुमरो को भी 19 ग्रेड में तरक्की मिल गई। इसके अलावा सूबाई सेक्रेटरी ग्रुप के सैयद आरिफ अली, जमाल मोहम्मद, आसिफ हारून, एजाज, मोहम्मद रफीक, खालिद सैफला को भी 17 से 18 ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई। इसके अलावा वज़ीर सेक्रेटरी के 4 अफसरान को जो है 19 ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई, जिसमें गुलशन अहमद शेख, सैयद कासिम शाह, मोहम्मद राशिद और फैसल तस्नीम शामिल है, जिनको तरक्की दे दी गई। जबकि महकमा सकाफत व सयाहत के 6 अफसरान को जो है 19 ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई, जिसमें गुलाम सरवर चाचड़, बिशारत अली, मोहम्मद अशरफ पटोली, शबीर अहमद लगारी, इम्तियाज अली मेमन, अब्दुल मजीद जो है करोई है, उनको भी अगले ग्रेड में तरक्की दे दी गई। जबकि महकमा सेहत के 30 डॉक्टर को जो 19 ग्रेड में तरक्की दे दी गई, जबकि महकमा वर्क एंड सर्विस के 8 अफसरान, जिसमें जावेद अली शेख, लोकमानिया राठी, अब्दुल वहीद शेख, अब्दुल सत्तार शेख, मोहम्मद एजाज, अख्तर रफीक अहमद कलोड़ो, शौकत अली अब्बासी और नदीम अहमद सिद्दीकी को जो है 19 ग्रेड में तरक्की दे दी है। जबकि महकमा बहबूद आबादी के एक अफसर को जो जिसका नाम है मोहम्मद इस्माइल कलोड़ो, उनको 19 ग्रेड में तरक्की दे दी गई। जबकि इसके अलावा दीगर जो महकमा एंटी करप्शन है उनके 16 ग्रेड के 9 अफसरान को अगले ग्रेड में असिस्टेंट डायरेक्टर के अहदों पर तरक्कियां दे दी गई। इन तमाम अफसरान के जो है टैक्सों का अलग अलग से महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। जी आज़ाद नोरियो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और शहर कायद में रमज़ानुल मुबारक में जगह जगह सड़कों पर इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान से। जहाँ बिल्कुल शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर इफ्तार ड्राइव का इनेकाद किया जाता है और इस बार भी कयूमाबाद वाले रोड पर मुख्तलिफ कयूमाबाद के रोड पर जो है वो मुख्तलिफ लोगों की जानिब से मुखय्यर हज़रात की जानिब से रोज़ा इफ्तार कराया जाता है राहगीरों को, मुसाफिरों को, गुरबा को। इस वक्त भी मैं जो है वो नादरा ऑफिस के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ लोगों की जानिब से, कुछ मुखय्यर हज़रात की जानिब से दस्तरखान का अहतमाम किया गया है। शिराज भाई हमारे साथ मौजूद है। सर हमें बताइएगा ज़रा ये आपकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है और क्यों लगा रहे हैं दस्तरखान, क्या वजह है, क्यों रोडों पर निकले हैं? अच्छा, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शिराज खान है। यूनाइटेड फॉर नेशनल इंटरेस्ट इदारा है हमारा। पिछले 4 साल से हम क्लिफ्टन DHA के अंदर यहाँ पे एक दस्तरखान का एहतमाम करते हैं। रोड के इस तरफ आपका DHA, रोड के इस तरफ आपकी आज़म बस्ती और कोरंगी है। जिस तरह आप देखते हैं कि इस वक्त जो महंगाई इस वक्त बढ़ी हुई हुकूमत की तरफ से, हम लोग शायद अपने दस्तरखान फिल कर सकते हैं फ्रूट के साथ, अच्छे खानों के साथ, लेकिन हमारी जो कम्युनिटी, हमारे जो बाकी लोग हैं वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा खाना सबका हक है, इफ्तार में सही खाना सबका हक है। तो हमारी कोशिश होती है तमाम दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसे दस्तरखान का एहतमाम किया जाए जहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ एनी जो ना। बता दिएगा कितने सालों से आप लगा रहे हैं और कब तक रहेगा ये? अच्छा, ये 4 साल से है, सिलसिला जारी रहा है। तमाम दोस्तों की, तमाम वकला दोस्तों की सपोर्ट हमारे साथ होती है। कोशिश रहेगी जितना हम कर सकते हैं आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शिराज खान हमारे साथ मौजूद थे। इनकी जानिब से ये दस्तरखान कयूमाबाद रोड पर लगाया जा रहा है। इफ्तार ड्राइव का इनेकाद किया जाता है और कयूमाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर भी इफ्तार ड्राइव का आज इनेकाद किया गया। जी, रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा जारी है। हस्बे मामूल यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बरकरार। इस पर देखते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की अदम दस्तयाबी, सस्ते आटे की खरीदारी लोगों के लिए इम्तिहान बन गई। आटे की अदम फरामी ने आवाम के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं तो इन्हें आटा नहीं मिलता और अगर मिल भी जाए तो दीगर अशिया की खरीदारी की वजह से इनके अखराजात बढ़ जाते हैं। मजबूरन बाजारों से महंगे दामों को खरीदना पड़ता है। आटा तो पहले मिलता नहीं है और जब मिलता है तो फिर गैर ज़रूरी चीज़ें इतने देते हैं कि वो गरीब आदमी उसका सोच भी नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अभी एक तेल 650 रुपये का मिल रहा है। अब उसके साथ जो है आप 3-3.5 हज़ार रुपये का सामान मिल जुला के दोगे, एक घी का तेल ही देगा तो फ़ायदा क्या हुआ? इससे अच्छा नहीं है कि वहीं अपने घर के पास से थोड़ा सा लेके अपना गुजारा चला ले। आटे मिलते नहीं है, बहुत सीना मुश्किल होते हैं, क्या 3-4 चक्कर आके फिर एक दफ़ा मिलते हैं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा वाफिर मिकदार में फराम करके रमज़ान पैकेज की अफादियत को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
बल्दियाती अफसरान से दफ्तरी औकात कार की पाबंदी करना सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध और मंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। रमज़ानुल मुबारक में दफ्तरी औकात कार में नरमी के बावजूद नाज़माबाद और लियाकताबाद टाउन का कोई भी अफसर ड्यूटी पर ना पहुँच सका। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। शहर के बल्दियाती इदारों में घोषित मुलाजमीन पहले ही दर्द सर बने हुए हैं। रही सही कसर बल्दियाती अफसरान के ड्यूटियों से गैर हाजिर रहने से पूरी हो गई। नाज़माबाद और लियाकताबाद टाउन के दर्जन भर दफातर जुम्मे के रोज आम तातील का मंजर पेश करती दिखाई दिए, जहां म्यूनिसिपल कमिश्नर समेत कोई अफसर सीट पर मौजूद नहीं था। वाइस चेयरमैन लियाकताबाद टाउन मोहम्मद इस्साक तैमूरी बोले, तहरीरी अहकामात के बावजूद अफसरान की मनमानियाँ जारी हैं। यहाँ पर जो ड्यूटी टाइम है वो एक तो रमज़ान की वजह से कम है, दूसरी ये कि तमाम अफसरान को बाकायदा लेटर भी दिए हुए हैं कि आप ड्यूटी पर पाबंदी चाहे वक्त पर पाबंदी से ड्यूटी अंजाम दें, लेकिन उनकी कान पे जोर नहीं लगती है। और अफसरान ने इनको एहसास से गिरफ्त कर रहे हैं, इंशाल्लाह बीती आएगी। शहरी कहते हैं मसाइल के हल के लिए चक्कर काटने पर मजबूर हैं, जब आओ अफसर गैर हाजिर होते हैं। आज जुमे का दिन भी है, दूसरे के शॉर्ट डे है, हो सकता है ये लोग ना आए हो, मगर ये कि इनको होना चाहिए था। ज़ाहिर है आवाम लोग परेशानी होती है, आवाम को बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, सीवरेज के, पानी के, बहुत सारे, तो उसको ज़ाहिर है रेक्टिफाई करना है, उसको सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को। तरी औकात की पाबंदी नहीं है, इस वक्त टाइमिंग है, ज़ाहिर है अभी जुमे की नमाज से पहले का टाइम है, तो इनको होना चाहिए था बिल्कुल। दफातर के अचानक दौरों से मशहूर सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी से अवाम ने मुतालबा किया कि वो टाउन हुकूमतों में भी अचानक दौरे करें और दफातर से गैर हाजिर अफसरान को एहतसाब के कटेरे में लाएं। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। गुलबर्ग टाउन कौंसिल ने मरकजी इमारत में कायम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के यार्ड को गैर कानूनी कब्जा करार देते हुए फौरी खाली करने की करारदाद मंजूर कर ली। मज़ीद तफसीलात रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। गुलबर्ग टाउन की जानिब से 2 लीगल नोटिस भिजवाने और कौंसिल में करारदाद पास किए जाने के बावजूद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इंतजामिया ने टाउन इमारत से अपना यार्ड ख़त्म नहीं किया। फोकल पर्सन फारूक नेमतुल्लाह कहते हैं अब अदालत जा रहे हैं। तनाज़ा असल ये है कि DMC सेंट्रल ने जो मुआहदा किया था, उस मुआहदे के तहत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास सिर्फ होना है यार्ड, ना ये पार्किंग एरिया, ना ये बिल्डिंग, ये उन्होंने, और ना ये दीवार। तो ये सारा का सारा इनका इलीगल एक्ट है। हम करस्पॉन्डेंस से ये सारी तमाम चीज़ों से इसको कोशिश में लगे सॉल्व करने के लिए। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह और डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ बोले, जगह की तंगी के बायस उमूर की अंजामदही में मुश्किल हो गई है। बातचीत गुफ्तगू आगे भी हमने जो है कराची जो है उससे भी बात करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं आया, तो अब हमारी कौंसिल ने ये पास कि हम इस पे जो है कानूनी तौर पर पटिशन करने जा रहे हैं कि ये जो चीज़ है वो सच में गैर कानूनी है और उस MOU के साथ जो समा का मुआहदा है उसके ख़िलाफ़ है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ज़िला बस्ती की इंतजामिया ने गुलबर्ग टाउन की तकरीबन 2 एकड़ जगह पर अपना यार्ड कायम करके ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान, सिटी 21। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी से मुलाकात की है, जिसमें शहर के बल्दियाती मसाइल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। तरक्याती कामों, पानी और सीवरेज के मसाइल के हल समेत मुख्तलिफ मनसूबों पर भी तबादला ख्याल हुआ। मेयर कराची का कहना था कि शहर में बल्दियाती मसाइल के हल के लिए कोशिशां हैं। पीपल्स पार्टी के मेयर, डेप्यूटी मेयर, चेयरमैनों का काविशों से तरक्की का सफ़र तेज़ी से जारी है। इस मौके पर सईद गनी ने कहा कि तरक्याती कामों को बरवक्त मुकम्मल करके अवाम से किए गए वादों को पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीकुल रोमैती ने बच्चों के साथ अमाराती चिल्ड्रन डे मनाया। तकरीब का इनकाद कराची के कौंसलेट में किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर कौंसल जनरल UAE का कहना था कि सिर्फ 15 मार्च नहीं, पूरे साल इस दिन के हवाले से आगाही देना ज़रूरी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की काविशों का नतीजा है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, इनकी सेहत और तालीम पर भरपूर मेहनत करना ज़रूरी है। आज बच्चे को अच्छा खाना और तालीम दी जाएगी तो वो मुस्तकबिल में मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालेगा। बखीत अतीकुल रोमैती ने बच्चों को इनके हकूक़ के हवाले से भी आगाह किया। MKM के रहनुमा सैयद अमीनुल हक की डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शोएब मुख्तार से। जी शोएब, बताइएगा। और जी बिल्कुल, MKM पाकिस्तान के रहनुमा सैयद अमीनुल हक की डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई है, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है।
सैयद अमीनुल हक ने सैयद गुलाम मुस्तफा शाह को डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली का मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी दी है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करने पर MKM पाकिस्तान के रहनुमा सैयद अमीनुल हक का शुक्रिया अदा किया है और उन्हें दोबारा कौमी असेंबली का मेंबर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में तजावुजात का केस है। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार वकील से इस्तफसार किया कि कितने लोग वहां रहते हैं। कहा कि क्या इन 1000 लोगों को दफन कर दें। ख्वाजा इजहारुल हसन ने अदालत से इंसाफ की अपील कर दी है। मजीद इस रिपोर्ट में देखते हैं। न्यू कराची सनती एरिया में तजावुजात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत इलाका मकीनों की जानिब से MKM रहनुमा ख्वाजा इजहार सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि तजावुजात की वजह से इंडस्ट्रीज में जाना मुश्किल हो गया है। लोगों ने गैर कानूनी घर बनाए हैं। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने वकील से इस्तफसार किया कि कितने लोग वहाँ रहते हैं। वकील ने बताया कि 1000 के करीब लोग रिहाइश पजीर हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या उन लोगों को हम जिंदा दफन कर दें। ख्वाजा इजहार ने बताया ये आबादी 1950 से आबाद है। लोगों के पास कच्ची और गोट आबादी लीज भी मौजूद हैं। जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा मामले पर रिहायशियों और फैक्ट्रियों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल आला सतह की कमेटी तश्कील देते हैं। कमेटी तमाम फरीकैन को सुने और मुतबादिल हल निकाले ताकि किसी को नुकसान ना हो। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा इजहार का कहना था कि सिर्फ 2 फैक्ट्रियों की गलत बयानी की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की गई। ये आबादी 74 साल से कायम है। कराची में अगर कोई स्वयं का टेंट भी लगाता है तो पुलिस पहुंच जाती है। यहाँ पर तो लोगों ने अपने घर बनाए हैं। अदलो इंसाफ होना चाहिए। अगर आबादी हटाने का हुक्म दिया गया तो मुतबादिल फराहम किया जाए। ये न्यू कराची इंडस्ट्रियल में 1950 से एक आबादी मौजूद है जिसके पास कच्ची आबादी गोट आबादी की लीजें हैं और जाहिर है कि कराची में तो आप स्वयं का टेंट लगाएं तो पहले पुलिस आ जाती है। तो यहाँ तो मकान बने हैं, जाहिर है तमाम सिविक इदारे उन्होंने ज़ाहिर मामनत की है, परमिशंस दी हैं, लीजें दी हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कोई 5000 घर यहाँ मौजूद हैं। अदालत से बस इतनी इस्तदा थी कि इनके साथ इंसाफ भी हो और अदल भी हो। अदालत ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सचल की हदूद में पुलिस पार्टी समेत प्राइवेट अफराद की जानिब से 1 करोड़ से ज़ायद डकैती का वाक़या पेश आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सचल की हदूद में पुलिस पार्टी समेत प्राइवेट अफराद की जानिब से ये वाक़या पेश आया है। इस पर मज़ीद बात करेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद होंगी। सचल की हदूद में पुलिस पार्टी समेत प्राइवेट अफराद की जानिब से 1 करोड़ से ज़ायद डकैती का वाक़या पेश आया है। SSP इन्वेस्टिगेशन सऊद मगसी ने केस की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानने के लिए बात करेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, अपडेट कीजिएगा। सचल की हदूद में पुलिस पार्टी समेत प्राइवेट अफराद की जानिब से 1 करोड़ से ज़ायद की डकैती का वाक़या पेश आया है। बिल्कुल, देखिए ये जो दो दिन पहले डकैती की वारदात हुई थी, इस पर जो सचल की हदूद में पुलिस पार्टी समेत प्राइवेट अफराद की जानिब से 1 करोड़ से ज्यादा की डकैती का जो वाकया था, SSP इन्वेस्टिगेशन सऊद मगसी ने केस की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी है। तफ्तीशी हुकाम से हमारी बात हुई थी और SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट सऊद मगसी ने बताया कि कमेटी ASP गुलशन की सरबराही में बनाई गई है। 4 रुकनी कमेटी 14 दिन में रिपोर्ट जो है वो पेश करवाएगी। कमेटी में ASP गुलशन, SHO सचल, SIO सचल, आमिर गोपांगौर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो शामिल है, जो गिरफ्तार मुलजिमान और पुलिस पार्टी है उनसे तहकीकात करके शफाफ इंक्वायरी करके 14 दिन बाद जो है वो बाकायदा तौर पर SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट सऊद मगसी को रिपोर्ट पेश की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया। कारोबारी खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मंदी देखी गई है। सरमायाकारों की जानिब से मोहतात शेयर्स की फरोख्त के बायस मार्केट का मनफी इख्तिताम हुआ है। मज़ीद तफसीलात अयाज राना की इस रिपोर्ट में।
स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज मुस्बत रहा। मार्केट में अचानक जबरदस्त तेजी आ गई। स्टॉक मार्केट में 6 कारोबारी हफ्ते मुसलसल मंदी से 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 2000 पॉइंट्स की कमी के बाद आज सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी को तरजीह दी, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1015 पॉइंट्स इजाफे से 65,000 की सतह अबूर कर गया और 1.56% इजाफे से 65,064 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट सरमायाकार जावेद खन्नानी का कहना है मार्केट में मुसलसल मंदी थी, जिसकी वजह से मार्केट में आज सरमायाकारों को अच्छे रेट मिलने पर सरमायाकारी की है। 4-5 दिन वर्किंग डे लास्ट में जो मार्केट है 2000 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुकी है, तो आज लोगों को डिस्काउंट रेट पे माल मिल रहा है, तो काफ़ी बाइंग भी आ रही है। और ये लग रहा है कि आज सेक्टर में जैसे मोटर सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, ऑयल है, गैस है, ये सेक्टर बड़े अच्छे चल रहे हैं। और स्टेट ये है कि आपका डिस्काउंट रेट भी जो स्टेट बैंक शायद स्टेट रखे, तो इस वजह से भी मार्केट आपको पॉजिटिव मिल जाएगी। आज कारोबार के दौरान 332 कंपनियों के 31 करोड़ 40 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 10 अरब 46 करोड़ रुपए से जायद की रही। कारोबार के दौरान 247 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 70 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन फरहान के साथ अयाज राना, सिटी 21। होटल मेहरान में बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अपडेट करेंगे सैयद जुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, ये देखें इस वक्त मैं मेहरान होटल में मौजूद हूँ और बैनुल मज़हब कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर आज मुनक्किद की गई है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के जो कौंसल जनरल्स हैं उन्होंने यहाँ पर शिरकत की है। तुर्किया के कौंसल जनरल जमाल सांगू, इसके अलावा मलेशिया के कौंसल जनरल और ईरान के जो कौंसल जनरल हसन नूरियान, उन्होंने भी यहाँ पर शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। You know, a few years back in the United Nations General Assembly, 15th of March has been approved and determined as the International Day of Combat of Islamophobia. 5 Islamic countries, including Iran, Pakistan, Turkey, Jordan, Saudi Arabia, and Indonesia. These countries led the coalition, and Alhamdulillah, the resolution have been approved in the United Nations Security Council. And Pakistan, on behalf of the Islamic Organization Conference, led this issue initiative. We are trying to send a strong message to those countries that they are trying to respect Islam, the religions of Islam. बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। शमा, इसके पस मंज़र में क्या सोच थी? यूनाइटेड नेशन ने चूँकि जो है 15 जो है मार्च का दिन रखा है इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया भर में जिस तरह मज़हब इस्लाम की तौहीन की जा रही है, या वो बच्चियाँ जो स्कार्फ पहन रही है, या कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, इन चीज़ों को काटिल करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 15 मार्च का दिन रखा था। तो आज हमने इस्लामिक ब्रादर ममालिक के साथ मिल के इस दिन को मनाया है। बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस इस वक्त यहाँ पर जारी थी और यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स भी शरीक थे। तमाम इस वक्त जो है इशाइये का एहतमाम भी किया गया है और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के जो सीजीज़ हैं यहाँ पर एक साथ बैठ के जो है यकजा होकर जो है इस वक्त इशाइये से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।